My precious friend, मेरे अनमोल मित्रों, every good gift and every perfect gift is from above. हर एक भला और हर एक उत्तम दान ऊपर से ही आता है। God is giving you perfect gifts of the Holy Spirit. परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के सिद्ध वरदान प्रदान कर रहे हैं And God is giving you every good blessing in your life. और आपके जीवन में हर एक उत्तम आशीषों को भी दे रहे हैं। It's manufactured in heaven, ये स्वर्ग में बनाए जाते हैं, perfected by the Father of all lights, in whom there is no darkness at all. और उस ज्योति के परमेश्वर के द्वारा जिसमें कोई अंधकार नहीं, ये सब सिद्ध किए जाते हैं। Today He's pouring His blessing upon you so that you can enjoy every blessing with all the joy of heaven. और आज वो आप पर सारी आशीषें बरसा रहा है ताकि आप स्वर्ग के पूरे आनंद के साथ उनका आनंद लेने पाएं। As dear sister who serves in the Mangalore Prayer Tower, Sister Rekha gave her testimony. एक प्रिय बहन जो मैंगलोर प्रार्थना भवन में सेवा करती हैं, रेखा, उन्होंने अपनी गवाही कुछ यूं दी। She has been serving faithfully for the past 10 years since the inception of that prayer tower. उस प्रार्थना भवन के प्रारंभ से पिछले 10 वर्षों से वो वहाँ सेवा कर रही हैं God has done great miracles in her life. और उनके जीवन में प्रभु ने महान आश्चर्य कर्म किए हैं। In 2012, her son Akshay was enrolled in the Young Partners Plan. 2010 में उनका बेटा अक्षय युवा सहभागी योजना में जोड़ा गया। God filled him with wisdom and knowledge, and he did very well in his academic career. परमेश्वर ने उसे बुद्धि ज्ञान से भरा और उसने अपने पढ़ाई में बहुत अच्छा किया। Completed his engineering, अपनी इंजीनियरिंग उसने पूरी and की he tried very hard to get a job. और एक नौकरी के लिए उसने बहुत मेहनत की। In a particular job, in a particular organization, they were expecting bribes. और एक विशेष संस्था थी जहाँ पर वो नौकरी के लिए घूस की अपेक्षा कर रहे थे। And one needed political connections to get that job. या तो फिर एक को एक राजनीतिक संबंध चाहिए था कि वहाँ नौकरी उसे मिले, But the hope of the family was only Jesus. लेकिन परिवार की आशा केवल यीशु मसीह थे। So dear sister Rekha decided that she would sponsor a TV program if her son gets a job by the grace of Christ. इसलिए प्रिय बहन रेखा ने निर्णय लिया कि अगर मसीह के अनुग्रह से उसके बेटे को वो नौकरी मिलती है तो वो एक टीवी प्रोग्राम को प्रायोजित करेंगी। In 3 days after she made this commitment to God, an unknown person came and got the son a job in that company without paying a single penny. और ये निर्णय लेने के 3 दिन के अंदर एक अनजान व्यक्ति आया और बिना एक पैसे के उस बेटे को उसने उसी कंपनी में नौकरी दिलाई। Oh, the family rejoiced और पूरा परिवार जो है आनंद से भर गया and sponsored the TV program. और उन्होंने टीवी कार्यक्रम को प्रायोजित किया। Now her son is working in Orissa as a project manager. आज उनका बेटा उड़ीसा में एक प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में कार्य कर रहा है Blessings started flowing in their lives. और उनके जीवन में आशीषें बहने लगी। The family members accepted the Lord as Savior. परिवार के लोगों ने यीशु को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकारा। Husband's family, which was against them, reconciled with them. उसके पति का परिवार जो उनके खिलाफ था, उन्होंने उससे मेल मिलाप किया। Truly, every good gift, every perfect spiritual gift was given to this family. और निश्चय इस परिवार को हर एक भली आशीषें और सिद्ध आत्मिक आशीषें प्राप्त हुई। God is giving you this grace. परमेश्वर आपको यह अनुग्रह दे रहा है। God is a perfect Father. परमेश्वर एक सिद्ध पिता है। He will perfect every good gift in your life. वो आपके जीवन में हर एक अच्छे दान को पूरा करे। Everything will become perfect. सब कुछ बिल्कुल सिद्ध हो जाएगा। Jesus, यीशु our Lord, हमारे प्रभु जी, do it for your children, Lord. अपने संतानों के लिए आप ये करें। Do it for your children. अपने संतानों के लिए करें। Let grace abound. आपका अनुग्रह बढ़ता जाए। The children who have to study have a clear mind and perfect blessing in their examinations, Lord. पढ़ने वाले बच्चों को प्रभु जी एक साफ मन दें और उनकी परीक्षा में आप उन्हें आशीष दें। Let them excel in Jesus' name. यीशु के नाम में वो श्रेष्ठ होने पाएं। Give them all the grace to concentrate. एकाग्रता के लिए प्रभु जी आप उन्हें पूर्ण अनुग्रह प्रदान करें। Bless the children with good health. बच्चों को अच्छे स्वास्थ्य के साथ आशीष दें। And those who need a job, bless them with an excellent job without having to go through
any tribulation. जिन्हें एक नौकरी चाहिए बिना किसी परेशानी के, आप उन्हें एक अच्छी नौकरी प्रदान करें। Let the girls have peace of mind in their jobs लड़कियां जो है अपने नौकरियों में मन की शांति पाएं and great success too. और साथ ही महान सफलता भी। Honor this family, Lord, इस परिवार का आप आदर करें and bless everyone who needs a life partner. और हर एक जिसे एक जीवन साथी चाहिए आप उन्हें आशीष दें। Reward them with this blessing today in the name of Jesus. यीशु के नाम में इसी आशीष के साथ आज अपने प्रतिफल By दें। the grace of God, परमेश्वर के अनुग्रह से Lord, give them the spiritual gift प्रभु जी आप उन्हें आत्मिक वरदान प्रदान करें to have understanding of the heart of God, ताकि वे परमेश्वर के हृदय को समझ पाएं, to have your guidance कि आपकी अगुवाई को पाएं and to be led by you. और आपके द्वारा से वे अगुवाई प्राप्त करें। Dominic, डोमिनिक, you have lost everything in your business, in your work, आपने अपने व्यवसाय अपने काम में सब कुछ खो दिया है and you're totally heartbroken. और आप पूरी तरह से हृदय विदारित हैं। Dominic, God's Holy Spirit is coming upon you right now. डोमिनिक, परमेश्वर की पवित्र आत्मा इसी समय आप पर आ रही है। God has allowed it for you to learn the things of operations and statutory matters. परमेश्वर ने आपके लिए सब होने दिया ताकि आप प्रबंधन और नियम कायदे और कानून को पालन करना सीखें। Now He will give you the right people to support you अब वो आपको सही लोग देगा कि आपकी सहायता करें and bless all that you do. और जो भी आप करेंगे उसे आशीष देगा। You will care for your whole family. आप अपने पूरे परिवार की चिंता करेंगे। Enlarge the territories of your children, Lord. अपने संतानों के क्षेत्र को आप बढ़ाएं प्रभु। Prosper their businesses too. और साथ ही विशेषकर उनके व्यवसाय Bless their bodies and heal them, Lord. उनके शरीरों को आशीष देकर उन्हें चंगा करें। Revive the family relationships. पारिवारिक संबंधों को आप पुनर्जीवित करें प्रभु। And give them peace. आप उन्हें शांति दें। Bless this day. इस दिन को आशीष दें। Give them justice today. आज उन्हें आप न्याय दें, Justice न्याय and victory. और जय भी In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमीन। God bless you richly and abundantly. परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आशीष दे। Amen. आमीन।